Good day, all of you. I hope you are enjoying the best of your spirits. Today, we will be discussing a very important topic, that is generalizing of transactions. Generalizing of transactions. We will first understand what is journal. Journal is that book in which generalizing is done. Transactions are initially recorded, or we can say generalize. The process of recording the transactions into journal is called generalizing. So it is done in a chronological order. Chronological order means date wise. The date which occurs first will be entered first, and with the successive dates the entry of the transactions are done before they are transferred to the ledger accounts. So before posting them into the ledger, we will be do a chronological record of the transaction, and this process is known as journalizing. A journal makes several contributions to recording process. It discloses in one place the complete effect of a transaction. The complete effect of a transaction is recorded in a one place, that is called journal. It provides a chronological record of transactions. It helps to prevent or locate errors, as debit and credit amounts for each entry can be compared. As we know that the accounting is done on the basis of double entry system of accounting. So here every debit has a corresponding credit. We will record both the aspects of the transaction, that is give and take aspect, and the effect of both the transactions should be equal. So it will be helping us in locating the errors if the debit side is not matching with the total of the debit side is not matching with the total of credit side. We will locate that the entry is not in balance and something wrong has been done. So generalizing transactions is the process of recording financial transactions in the accounting journal. Each transaction is recorded in a specific format that include the date, account affected, amounts and a brief description. डेट आएगी सबसे पहले, क्योंकि वी विल बी एंटरिंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेट इज मस्ट इन इट. उसके बाद जो जो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं वो आएगा उनका. उसके बाद हमारे दोनों अमाउंट्स आ गए, दैट इज डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट. और उसके बाद हम उसमें देते हैं एक जर्नल की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. This process is essential for maintaining accurate financial records and is the first step in the accounting साइकिल. ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप है. और जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया, ये फॉर्मेट फॉलो करना मैंडेटरी है. यही फॉर्मेट हम अकाउंटिंग में फॉलो करेंगे. सो स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग ट्रांजेक्शन क्या है? सबसे पहले आप जर्नल स्टार्ट करने से पहले व्हाट स्टेप्स डू यू फॉलो? Number one, identify the transaction. The transaction should be monitored. Determine what the transaction is and which account are affected. ट्रांजैक्शन क्या है और उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट में आ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है. कैसे करना है अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेके सीखेंगे. नंबर टू, we will determine the accounts. Identify which accounts will be debited and which account will be credited. Remember that डेबिट हम कब करते हैं, ये याद रखिए आप हमेशा. प्लीज रिमेंबर दिस. डेबिट इंक्रीज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज लाइबिलिटीज एंड इक्विटी. डेबिट में एसेट और एक्सपेंसेस का इंक्रीज होता है, रिकॉर्ड होता है, वो डेबिट होता है. और लाइबिलिटी और इक्विटी का डिक्रीज डेबिट होता है. ये मैंने आपको पिछली स्लाइड पे भी बताया था. रिमेंबर इट. देन क्रेडिट में क्या होता है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी और इक्विटी. अपोजिट हो गया. आप अगर एक याद कर लेंगे तो आपको उसका अपोजिट क्रेडिट कर देना है. अगर आपकी लाइबिलिटी और इक्विटी का डिक्रीज आपने डेबिट किया था तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? क्रेडिट. और डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हमारा होता है क्रेडिट. एसेट और एक्सपेंसेस का देखिए इंक्रीज डेबिट हुआ था तो डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. Then we will record the date. Write the date of the transaction. कौन सी डेट पे ये ट्रांजेक्शन हुई थी, टू मेमोराइज इट. क्योंकि frequently in a big organization or even in a small organization we follow multiple transactions done in a single span of time on a single date.
So if we didn't record the date, then we could not memorize it. हम ह्यूमन मेमोरी की लिमिटेशन है, इसीलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत है. इसीलिए यहाँ पे डेट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट फर्दर इन फ्यूचर कभी आपको याद हो कि मुझे याद करना होगी मुझे May 1 ऑफ 2025 को क्या क्या हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई थी, उस दिन क्या क्या हुआ था. तो उसके लिए आपको जस्ट यू हैव टू लुक एट दिस जर्नल बुक, और आपको यहाँ से पूरी डिटेल उसकी May 1 को आपकी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई थी वो सब मिल जाएगी. Then we will record the accounts, write the name of the account to be debited first. जो डेबिट अकाउंट हो रहा है वो सबसे पहले लिखा जाता है, followed by the amount that is credited. Then write the name of the account to be credited below it, intended along with the amount. फिर दोनों के अमाउंट आ जाएंगे. अमाउंट में भी आपको हमेशा याद रखना है कि जितना अमाउंट आपने डेबिट किया है उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए, तभी आपकी एंट्री सही हुई है, तभी आपकी एंट्री इन बैलेंस है. देन वी विल एड अ डिस्क्रिप्शन, दैट इज इसको एड अ डिस्क्रिप्शन कह दीजिए, या इसी को हम कह देते हैं नरेशन. Narration is what? It is a brief description, right? A brief description of the transaction for clarity that what is happening. आपने किया क्या है उस ट्रांजैक्शन में वो आपको यहाँ लिखना है. अभी मैं इन्हीं सारे स्टेप्स को आपको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल में करके बताऊंगी, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट बेटर. ठीक है, तो फिर से हम एक ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं. व्हाट इज जनरलाइजिंग? Entering transaction data in the journal is known as generalizing. जब आप ट्रांजेक्शन को फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं या जर्नल भी कहते हैं, उसमें जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं जनरलाइजिंग. सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन. हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग एंट्री होगी, हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग एंट्री होगी. प्लीज रिमेंबर इट. A complete entry consists of, complete entry कब होती है? जब सबसे पहले आपने डेट एंटर कर दी, the accounts and the amounts to be debited and credited has to be entered, and a brief explanation of the transaction. क्या क्या करना है? डेट डालनी है, कौन से अकाउंट इफेक्ट में आया, कितना अमाउंट इफेक्ट में आया, प्लस नरेशन. ये चार चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है. सेकंड में हमने दो चीजें लिखी हैं, अकाउंट एंड अमाउंट. ठीक है, आप चाहे तो इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं या एक साथ भी लिख सकते हैं. अब देखिए, अब हम ये बता रहे हैं आपको व्हाट इज द टेक्निक ऑफ जनरलाइजिंग. कैसे करते हैं आपने? द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू द डेट कॉलम. ये है देखिए फॉर्मेट जनरल का फॉर्मेट है ये. सबसे पहले आती है हमारी डेट, उसके बाद हमारे अकाउंट टाइटल्स या एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं, या रेफरेंस, इसको हम लिख देते हैं जनरल फोलियो भी JF. फिर डेबिट का कॉलम एक और एक क्रेडिट का कॉलम. ये कॉलम्स हमारे मैंडेटरी हैं. ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है ये एज इट इज आपको फॉलो करना है. ये जो फॉर्मेट है ये एज इट इज आपको फॉलो करना है. सबसे पहला कॉलम हमारा आ गया ये डेट का, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कॉलम हम पर्टिकुलर्स का रखते हैं या अकाउंट टाइटल्स का रखते हैं. उसके बाद एक छोटा सा कॉलम, ये प्रैक्टिकल में यूज में आता है, बट जब हम अभी कर रहे हैं तो ये इतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए. व्हेन एज अ स्टूडेंट वी आर लर्निंग इट, क्योंकि हम प्रैक्टिकली कोई नेचर यहाँ नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ये जो LF बनता है लेजर फोलियो, यहाँ हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि कैश का लेजर हमारा कौन से पेज पे है. तो यहाँ उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है, इसलिए हम इसको छोटा सा बना देते हैं. फिर हमारा एक डेबिट और एक क्रेडिट का कॉलम. तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं डेट. ईयर हमने एक बार रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि ईयर विल बी द सेम, ईयर यदि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, तो इसलिए ईयर हम ऊपर एक बार लिख देते हैं. उसके बाद हम मंथ और डेट लिखते हैं. The debit account title is entered at the extreme left margin of the account titles. जो भी अकाउंट आप डेबिट कर रहे हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट से बिल्कुल मिला के लिखेंगे, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगे आप. The credit amount title is intended on the next line. नेक्स्ट लाइन में आप थोड़ा सा मार्जिन देकर, स्पेस देकर लिखते हैं आपने कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया है. ठीक है, जैसे यहाँ लिखा आ रहा है कैश
ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है, या हम इसको क्लियर करने के लिए लिख भी सकते हैं, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, DR इज एन एब्रिविएशन फॉर डेबिट, टू आर नील कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल तभी यूज होता है जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल अकाउंट तभी ओपन होता है जब ओनर पैसा लगाता है, कैपिटल उसी के नाम से खुलता है। 15,000 और 15,000 मतलब 15,000 रुपये कैश में बिजनेस के पास आए। क्यों आए? बिकॉज आर्नी ने कैपिटल इन्वेस्ट करी। तो क्रेडिट भी 15,000 हो गया, डेबिट भी 15,000 हो गया। सबसे पहले आपने डेट रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद आपने गिव एंड टेक एक्सपेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो वो डेबिट हो गया। ठीक है, या एसेट इंक्रीज हो रही है हमारी, आप सिंपल रूल लगाइए, देखिए कैश मीन्स हमारी एसेट हो रही है इंक्रीज, इसलिए हमने एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है इसलिए हमने उसको करा डेबिट, और हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, आर्नील कैपिटल, ये बिजनेस ओनर, बिजनेस हमेशा ये मान के चलता है कि ओनर का पैसा भी उसे वापस करना है अलॉन्ग विद द प्रॉफिट, सो उसकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए लाइबिलिटी इंक्रीज को हम करते हैं क्रेडिट, वो हमने यहाँ कर दिया क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा कितना, 15,000 और 15,000। देन एक और है हमारे एंट्री आ रही है, फिर हमने देखिए इसकी नरेशन लिखी है बीच में, ब्रैकेट्स में हम शो कर देते हैं, इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, कैश बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है जब कैपिटल इन्वॉल्व है तो वो ओनर ने ही किया होगा। फिर आती है देखिए हमारी कंप्यूटर इक्विपमेंट डेबिट, कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदा गया है और कैसा हुआ है, टू कैश। कैश में हम सीआर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने यहाँ टू लगा दिया या स्पेस देके लिख दिया, इट मीन्स सेम है। तो कैश 7,000, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कंप्यूटर इक्विपमेंट बिजनेस में आ रहा है और कंप्यूटर इक्विपमेंट एक साल में खराब तो होगा नहीं, दैट मीन्स इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, एसेट इज इंक्रीजिंग, तो हमारा क्या हो गया वो डेबिट। और सिमिलरली दूसरी तरफ हमारी दूसरी एसेट दैट इज कैश, ये बिजनेस से बाहर जा रही है, ये डिक्रीज हो रही है, और एसेट का डिक्रीज हम करते हैं क्रेडिट, ये मैंने अभी अभी पिछले स्लाइड में आपको समझाया था, तो ये हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये हमारी फिर हमारी अकाउंटिंग बैलेंस हो गई, और हमने नरेशन लिख दी, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। अब आप ये ध्यान रखिएगा, हमने चारों चीजें रिकॉर्ड करी है, सबसे पहले हमने डेट रिकॉर्ड करी, उसके बाद हमारे अकाउंट जो इफेक्ट में आए वो रिकॉर्ड करे, नंबर 1 हमने देखो यहाँ रिकॉर्डिंग करी, नंबर 2 हमने ये अकाउंट रिकॉर्ड करे, नंबर 3 हमने ये अमाउंट्स रिकॉर्ड करे, और उसके बाद हमने ये नरेशन रिकॉर्ड करी। ये चारों स्टेप्स होने चाहिए, प्लस ये प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आपका जो जर्नल आप बना के देंगे उसमें आपके मार्क्स कट होंगे, इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट और अप टू द मार्क। गॉट इट? नेक्स्ट वन, ये थी अभी जो मैंने आपको समझाई वो थी सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री मतलब दो अकाउंट इफेक्ट में आएंगे, दो अकाउंट तो इफेक्ट में आएंगे ही आएंगे, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग टू फोल्ड एक्सपेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज द गिव एंड टेक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो से ज्यादा अकाउंट हमारे इफेक्ट में आ रहे हैं और आप एक ही एंट्री उसके लिए पास कर रहे हैं, उस एंट्री को हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री। when 3 at least, देखो दो से ज्यादा 3 तो हो ही गए ना, when 3 or more accounts are required in one जनरल एंट्री, जब एक जनरल एंट्री में आप 3 से ज्यादा अकाउंट 3 या 3 से ज्यादा की रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो कहलाती है हमारी कंपाउंड जनरल एंट्री। द एंट्री इज रेफर्ड टू एज अ कंपाउंड एंट्री। फॉर्मेट आपका सेम है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, आप देखिए वही फॉर्मेट है, देखिए डेट है, अकाउंट टाइटल है, हो गया आपका रेफरेंस नंबर, हो गया डेबिट, हो गया क्रेडिट, हो गया। ठीक है, अब 2005 जुलाई 1 क्या हो रहा है, डिलीवरी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 14,000 रुपीज से डेबिट हुआ है, मतलब आपने कोई डिलीवरी करने के लिए कोई इक्विपमेंट परचेज किया है आपकी कंपनी ने, एसेट है, वो एसेट है तो वो डेबिट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट हो गई। दूसरा क्या हो रहा है, टू कैश 8,000 और
टू अकाउंट पेबल 6000। मतलब क्या हुआ, कंपनी के पास या बिजनेस के पास पूरे 14,000 रुपये नहीं थे पेमेंट करने के लिए, पूरे 14,000 रुपीज पेमेंट करने के लिए नहीं थे, या थे भी तो भी उसने नहीं किया। तो उसने कैश में जो पेमेंट किया वो तो है 8,000 रुपये, और बाकी उसने कह दिया कि आप अकाउंट पेबल मैं बाद में दे दूंगा आपको, अभी नहीं दे सकता। तो ये एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई बिजनेस की, क्या, अकाउंट पेबल। और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है बिजनेस की, इसलिए वो हो गई क्रेडिट। और कैश बिजनेस के पास से कम हो रहा है, इसलिए वो हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो दो अकाउंट, अब एक ही चीज में हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। इस इक्विपमेंट को परचेज करने में हमारी दो चीजें इफेक्ट में आई, थोड़ा सा हमने अपने पास से कैश दिया और थोड़े का हमने अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करवा दी, दैट इज अकाउंट्स पेबल। सो और इसके बाद आप ये देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो मैच हो गया है। 14,000 डेबिटेड और 8 + 6,000 दैट इज अगेन 14,000 इज इन क्रेडिट। सो एंट्री इज इन बैलेंस। अब हमें बस नरेशन पास करनी रह गई है, दैट इज परचेज ट्रक फॉर कैश विद बैलेंस ऑन अकाउंट। हमने ट्रक खरीदा कैश में 14,000 रुपए का, हालांकि 40,000 में कोई ट्रक नहीं आ रहा, बट इट इज एन इमेजिनरी फिगर, लेट्स इमेजिन इट। तो 14,000 रुपीज में हमने ट्रक परचेज करा, और 14,000 का ट्रक परचेज किया, लेकिन कैश पे किया केवल 8,000, और लाइबिलिटी जनरेट करी अपने ऊपर, बैलेंस ऑन अकाउंट अपने ऊपर रखा है कितना, 6,000। तो अगर आप थोड़े समय में इतना प्रोफिशिएंट हो जाएंगे कि आपको ये केवल एंट्री देखते ही समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था। नो नीड टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीट ट्रांजैक्शन। अगर आपको इस वे में नहीं समझ में आया हो तो हम सिंपल वे में पास करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम देखते हैं, हमारे जो एग्जाम्पल है वो है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज करे कंपनी ने, गुड्स परचेज हुए हैं, किस पे हुए हैं, क्रेडिट पे हुए, मतलब लाइबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, कौन सी लाइबिलिटी बढ़ रही है, उसने आज पेमेंट नहीं किया लेकिन कल को करेगा, तो यहाँ जो लाइबिलिटी का नेम आ जाएगा वो आएगा अकाउंट्स पेबल। ठीक है, कब खरीदे, दिसंबर 24, 2021 को परचेज कर रहे हैं। इसमें देखिए हमारे दो अकाउंट इफेक्ट में आएंगे, एक तो गुड्स अकाउंट बिजनेस में हम कभी भी ओपन नहीं करते। गुड्स देखिए अगर परचेज हो रहा होता है तो हम उसकी जगह लिख देते हैं गुड्स की जगह परचेज अकाउंट, और अगर सेल हो रहा होता है तो हम लिख देते हैं सेल। गुड्स अकाउंट कभी भी ओपन नहीं होता। यहाँ परचेज कर रहे हैं तो हमारा पहला अकाउंट जो इफेक्ट में आ गया वो हो गया परचेज अकाउंट, गुड्स की जगह पे आपने खोला। और दूसरा हमने किससे परचेज किया है, मैसर्स गोविंद ट्रेडर्स। किससे परचेज किया है, गुड्स मैसर्स गोविंद ट्रेडर्स। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। अब देखिए, अब इसके वही फॉर्मेट है हमारा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हमने डेट रिकॉर्ड कर दी 24 दिसंबर 2001। हमारा परचेज, क्योंकि गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, गुड्स हमारी एसेट है, वो डेबिट होंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू 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 ये सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये है गोविंद ट्रेडर्स। ट्रेडर्स टी और आएगा, गोविंद ट्रेडर्स। किससे परचेज करे थे हमने, गोविंद ट्रेडर्स से। ठीक है, अगर आपने परचेज गुड्स और कैश करा होता तो हमारी कैश का बिजनेस से बाहर जाता और कैश हमारी एसेट है वो कम हो रहा तो हम क्रेडिट करते, बट नहीं हो रहा है ऐसा। हमारी नोट्स अकाउंट्स पेबल बढ़ रहे हैं, और क्योंकि हमें यहाँ उसका नेम पता है अपनी फर्म का, इसलिए हमने फर्म का नेम लिख दिया, दैट इज गोविंद ट्रेडर्स। अदरवाइज आप यहाँ लिखते अकाउंट पेबल। अगर नाम नहीं पता होता कि आपने किससे परचेज किया है, नाम ट्रांजैक्शन में नहीं गिवन होता, तो हम लिखते अकाउंट्स पेबल, हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन हमें क्योंकि कंपनी का नाम पता है जिससे आपने परचेज किया है, तो हमने उसका कंपनी का नेम लिख दिया। दोनों जगह हमारा अमाउंट आ गया 50,000 और 50,000, और हमारी सिंपल सी एक नरेशन हमने लिख दी इन ब्रैकेट, परचेज ऑफ गुड्स
इन ट्रेड्स फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स। हमने गुड्स जो इस पे हम ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, वो परचेज करे हैं किससे? फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स। फिर हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अब हम कैश में सेल कर रहे हैं, अब कंपनी ने कैश में बेचा, ठीक है, गुड्स बेचे, ऑब्वियस सी बात है सेल किसकी करी होगी? गुड्स की करी होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि गुड्स अकाउंट हम ओपन नहीं करते, हम लिखते हैं उसी जगह सेल। सेल एक तो हमारा अकाउंट इफेक्ट में आया, इसमें दो ही अकाउंट इफेक्ट में आ रहे हैं, एक कैश और दूसरा सेल्स। सो कैश हमारी एसेट है, सेल करने पर कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस और कैश इज इंक्रीजिंग, सो कैश विल बी डेबिटेड। आप यहाँ पे देखिए हमें डेट नहीं गिवन है तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, जो भी डेट आपकी होगी वो हम मेंशन कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, 1000 रुपीज का है ना ट्रांजेक्शन, और किस वजह से आया है? बिकॉज आपने सेल्स किया है, टू सेल्स, सेल्स को आप रेवेन्यू भी कह देते हैं। सो सेल्स हमारी क्रेडिट हुई है कितनी? 1000 टू रिकॉर्ड कैश सेल ऑफ गुड्स। ये क्यों एंट्री आपने बनाई है? बिकॉज देयर वाज कैश सेल ऑफ गुड्स। देन परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, जो अभी आपको एंट्री बताई थी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट इज सेम थिंग। गुड और इन्वेंट्री सेम चीज है, बस अलग अलग नामों से आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, सो नो नीड नॉट टू बॉदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अब देखिए, अ कंपनी परचेजेस इन्वेंट्री वर्थ डॉलर कह लीजिए या रुपी कह लीजिए, आप कुछ वो डिनोमिनेशन आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अपनी ट्रांजैक्शंस कौन सी करेंसी में रिकॉर्ड करता है, ये डिपेंड करता है। तो इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर डॉलर होगा तो सब सारी ट्रांजैक्शंस डॉलर में होंगी, अगर रुपी होगा तो सारी ट्रांजैक्शन रुपी में होंगी, और वट एवर करेंसी इट डजंट मैटर एट ऑल, जो रिकॉर्डिंग प्रोसीजर है वो सेम है। तो अब कंपनी परचेजेस इन्वेंट्री वर्थ रुपीज 500 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो अगर आपने देखिए यहाँ पे परचेज इन्वेंट्री करी है, तो इन्वेंट्री तो खोलते नहीं है हम, गुड्स अकाउंट तो खोलते नहीं है, इन्वेंट्री और गुड्स मीन्स द सेम थिंग। तो यहाँ हमारा एक तो अकाउंट इफेक्ट में आया, दैट इज दिस परचेज अकाउंट, और दूसरा ऑन क्रेडिट है। देखिए अब यहाँ पे कंपनी का नेम नहीं गिवन है जिससे आपने परचेज करे हैं, पिछली ट्रांजेक्शन में गिवन था तो हमने उस कंपनी का नाम लिख दिया था, बट अब यहाँ नहीं गिवन है, तो मैंने आपको पिछली बार ही बता दिया था हम क्या टर्म यूज कर लेंगे, अकाउंट्स पेबल। तो एक तो हमारी इन्वेंट्री आई हम पे, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आया अकाउंट्स पेबल। तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री नहीं लिखोगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखा हुआ है, आपको इन्वेंट्री नहीं लिखा जाएगा। वी विल राइट परचेज अकाउंट डेबिट $500 to account payable to record purchase of inventory on credit. Then एक और सिंपल सी ट्रांजेक्शन लेते हैं, देखिए पेमेंट ऑफ रेंट, कंपनी ने किराए पे कुछ लिया था, उसका पेमेंट किया है, तो जाहिर सी बात है रेंट हो गया एक अमाउंट, अकाउंट हमारा जो हमारा एक्सपेंस को शो कर रहा है, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, और दूसरा आ गया हमारा कैश, क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है। तो रेंट इज एक्सपेंस, मैंने कहा था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है जो कि बढ़ रहा है, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 300 टू कैश, क्योंकि कैश आपका बिजनेस से बाहर जा रहा है, आपने पे किया है, ठीक है। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंस डेबिट होते हैं और इनकम हमारी क्रेडिट होती है। Alright? अब आप जब भी जर्नलाइजिंग स्टार्ट करिए तब आप हमेशा यूज कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट आपका मेंटेन अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट फॉर क्लैरिटी एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बी एक्यूरेट, डबल चेक दी अमाउंट्स एंड अकाउंट्स टू इंश्योर एक्यूरेसी, आपने सही अकाउंट रिकॉर्ड करे हो और सही अमाउंट रिकॉर्ड किया हो, ये आपको इंश्योर करना है। Keep descriptions clear, use clear and concise descriptions to explain the nature of the transaction, जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लियरली हो ताकि उसे पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है।
एंड देन फॉलो द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज ये ध्यान रखिए कि आप जिस साल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसी अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करें, कोई आगे फ्यूचर की या बैकवर्ड डेट की ना करें। Ensure that transactions are recorded in the current accounting period। तो ये हमारी टिप्स हैं जनरलाइजिंग की जो आपको फॉलो करनी है। So at last, I would like to say that journalizing transaction is a critical step in the accounting process as it lays the foundation for further financial reporting and analysis. By accurately recording transactions, business can maintain reliable financial records that reflect their economic activities. अगर जर्नल एंट्री सही होंगी तभी कंपनी के फाइनल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं, वो क्रेडिबल होंगे, वो जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं उनके उन तक, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी का रिवील कर पाएंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप इस वीडियो को 2-4 बार रिपीट कर करके दोबारा सुनिए so that you will understand the topic better. Here is my email ID. If you have any query, you can refer it to me on this email ID. And this is the link that I have shared for my YouTube channel. You subscribe it and follow it. Thank you. Thank you all.